Dear students, I, Professor Kavita Brahmankar, welcomes you to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today we are going to start third unit of our syllabus. Unit name is Physical Layer and we are going to cover topic 3.1. Topic name is Multiplexing. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to define multiplexing, draw the diagram of multiplexing, state the reason behind use of multiplexing with its advantages, and list the methods or types of multiplexing. Course outcome that is going to map is CO3. That is, you will be able to maintain relevant transmission medium and modem for data transmission. Then program outcomes that will get mapped are PO1. There will be improvement in your discipline as well as basic knowledge. PO4, you will be able to use various engineering tools and perform experiments and test the performance of network. Then project management. By doing micro projects, your oral and written communication will get improved. And PO7, that is lifelong learning. Whatever knowledge you are taking here, that will be with you for lifetime. So PO7 will get achieved. Prerequisite to this topic is you should know the basic data communication system and what is TCP IP and OSI reference model. So you should have the basic knowledge of all these things. Now let us see what is multiplexing. Multiplexing is a technique used to combine and send the multiple data streams over a single medium. Means जो भी हमारे पास डेटा है वो हम कंबाइन करेंगे. मीन्स n नंबर ऑफ हमारे पास अगर लाइन्स है उन सब लाइन्स को हम कंबाइन करेंगे और एक ही स्ट्रीम के ऊपर एक ही मीडियम के ऊपर हम उसको सेंड करेंगे. सो द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द डेटा स्ट्रीम्स इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग एंड द हार्डवेयर यूज्ड फॉर मल्टीप्लेक्सिंग इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर. सो जो भी प्रोसेस है डेटा को कंबाइन करने की और डेटा स्ट्रीम्स को कंबाइन करने की, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग. और ये मल्टीप्लेक्सिंग डिवाइस से होती है, उस डिवाइस हार्डवेयर डिवाइस को हम बोलेंगे मल्टीप्लेक्सर. मल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड मक्स और मल्टीप्लेक्सर दैट कंबाइंस n इनपुट लाइन्स टू जनरेट अ सिंगल आउटपुट लाइन. मल्टीप्लेक्सिंग फॉलो many to one. N input, that means n input lines and one output lines. Just we can see in this figure. So n input lines, multiple data streams. This is multiplexer at the sender side. This is demultiplexer at the receiver side. So n input lines. These n input lines are combined with a single channel. Means एक ही single channel पे हम उनको combine करेंगे और एक ही link generate होंगी, इसलिए हम इसको बोलेंगे many to one. एंड डीमल्टीप्लेक्सर साइड पे ये जो सिंगल लिंक है वो सिंगल लिंक n आउटपुट लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. सो डीमल्टीप्लेक्सर विल बी 1 to n और सिंगल टू मेनी लाइंस. इस तरीके से हम डायग्राम के थ्रू इसको देख सकते हैं. डीमल्टीप्लेक्सिंग इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सर. डीमक्स अवेलेबल एट द रिसीविंग एंड. हम रिसीविंग एंड पे डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे एंड सेंडिंग एंड पे मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे. DMUX separate a single signal into its component signals, one input and n outputs. Therefore, we can say that demultiplexing follows one to many approach. जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा है, multiplexer uses many to one approach and demultiplexer uses one to many approach. Means multiplexer साइड पे हम n इनपुट लाइंस देंगे और वो एक इनपुट लाइन पे एक आउटपुट लाइन पे कंबाइन होगा एंड डीमल्टीप्लेक्सर साइड पे वो एक हम इनपुट लाइन देंगे मल्टीप्लेक्सर को एंड वो n आउटपुट लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर. देन व्हाई मल्टीप्लेक्सिंग? हमें मल्टीप्लेक्सिंग की जरूरत क्या है? सो if no multiplexing is used between the users at two different sites that are distance apart, then separate communication lines will be required. अगर हमने सेंडिंग और रिसीविंग साइड पे जो भी बहुत डिस्टेंस पे है उनके बीच में अगर मल्टीप्लेक्सिंग यूज नहीं किया
तो हर एक डेटा स्ट्रीम के लिए हमको सिंगल सिंगल लाइन लगेगी। तो ऐसे अगर हम एट अ टाइम बहुत सारे डेटा स्ट्रीम भेजते हैं तो उतने सारे हमको n नंबर ऑफ लाइंस लगने वाले हैं, डेटा लाइंस लगने वाले हैं। सो दिस इज नॉट ओनली कॉस्टली बट ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज। सो इतने सारे अगर हमारे पास लाइंस लगने वाले हैं डेटा स्ट्रीम भेजने के लिए, सो दैट विल बी वेरी कॉस्टली और उनको मैनेज करना ये भी बहुत डिफिकल्ट काम है। इफ मल्टीप्लेक्सिंग इज यूज देन ओनली वन लाइन इज रिक्वायर्ड। तो अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग का यूज करते हैं तो इंस्टेड ऑफ n नंबर ऑफ लाइंस एक ही लाइन से हमारा काम पूरा हो रहा है। दिस लीड्स टू द रिडक्शन इन द लाइन कॉस्ट एंड ऑल्सो इट वुड बी इजियर टू कीप ट्रैक ऑफ वन लाइन देन सेवरल लाइन। सो हमारा काम भी इजी हो रहा है। n लाइन को मैनेज करने के लिए हमारे पास टाइम और जितने एफर्ट्स लगते थे वो हमारे यहाँ पे बच रहे हैं, इसीलिए हम एक ही सिंगल लाइन का अच्छे से ट्रैक रख सकते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज बिहाइंड यूजिंग मल्टीप्लेक्सिंग। When multiple signals share the common medium, there is a possibility of collision. Multiplexing concept is used to avoid such collision. So multiplexing से हम signal collision भी avoid कर सकते हैं और multiplexing use करने से हम अपने bandwidth का full utilization कर सकते हैं और efficient utilization कर सकते हैं. So this is all about why we need multiplexing. Then ये डायग्राम के थ्रू अगर हम देखते हैं तो देखिए ये सेंडर है, ये रिसीवर है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लेक्सिंग यूज नहीं किया है, नो मल्टीप्लेक्सिंग यूज। सो एक डेटा स्ट्रीम भेजने के लिए हमको एक यहाँ पे लाइन जनरेट करनी है, दूसरा डेटा स्ट्रीम के लिए दूसरी लाइन, ऐसे ही n नंबर ऑफ डेटा स्ट्रीम के लिए n नंबर ऑफ लाइंस हमको जनरेट करने पड़ेंगे। इसीलिए हमारा जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, हार्डवेयर कॉस्ट, और हमारा टाइम जो है वो भी यहाँ पे ज्यादा लगेगा। इसलिए टू अवॉइड ऑल दिस कोलिजन वी यूज मल्टीप्लेक्सिंग। द वर्ड पाथ रेफर्स टू द फिजिकल लिंक। जब भी हम पाथ वर्ड का यूज करेंगे सो इट इज द फिजिकल लिंक, एंड द वर्ड चैनल रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ द पाथ दैट कैरीज अ ट्रांसमिशन बिटवीन अ स्पेसिफिक पेयर ऑफ डिवाइस। तो जब भी हम चैनल बोलेंगे सो चैनल इज अ पार्ट ऑफ द पाथ। ओके, जब भी हम चैनल बोलेंगे सो चैनल मीन्स पार्ट ऑफ अ पाथ, और उस पर्टिकुलर चैनल पे हमारा डेटा रिसेंटली करंटली ट्रांसफर हो रहा है उसको हम चैनल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ रोड कैन हैव मेनी एन चैनल्स। हमारा रोड जो है 4 लेन्स में अगर डिवाइड है तो जिस रोड पे अभी फिलहाल ट्रैफिक करंटली चालू है उस रोड को हम बोलेंगे चैनल। सो जो भी एक्टिव हमारा पार्ट है हमारे रोड का या पाथ का उसको हम बोलेंगे चैनल। So this is difference between path and channel. Then advantages of multiplexing. So more than one signal can be sent over a single medium. So एक ही मीडियम पे हम ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स, more than one signal हम भेज सकते हैं। The bandwidth of a medium can be utilized effectively. So हमारे पास जो भी bandwidth अवेलेबल है उसका हम full utilization कर सकते हैं। So these are the advantages of multiplexing. Then types of multiplexing. अब मल्टीप्लेक्सिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, तो वो मेथड्स है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसको हम बोलेंगे एफडीएम, डब्ल्यूडीएम एंड टीडीएम। सो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, दैट इज synchronous TDM and asynchronous TDM. So in next video we are going to see all these methods briefly. So dear students, let us summarize today's lecture. Today we have studied what is multiplexing, what is the diagram of multiplexing, how is the diagram of multiplexing, then what is the reason behind using multiplexing with its advantages, and what are the methods or types of multiplexing. So dear students, I hope you might have understood today's lecture, and if not understood then watch the videos frequently, and still you have any queries then reach out on the following email ID. Thanks for listening the video. Keep learning and enjoy learning. Thank you so much.